Welcome students. Today we are going to start question number 3 of construction. In previous two videos we had discussed question number 2 as well as question number 1. So today it's turn to complete question number 3 successfully in this video. So I am just reading the question. Please pay attention. Draw a circle of radius 3 centimeter. एक सर्कल बनाना है 3 सेंटीमीटर का. Take 2 points P and Q on one of its extended diameter, each at distance 7 centimeter from its center. तो अभी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी. ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर. सबसे पहले मैं सर्कल बना लेता हूँ एक 3 सेंटीमीटर का. सो दिस इज माई compass. I am just opening it, and so first of all I am just checking that my pencil is sharp enough or not. Yes, it is sharp enough. So it's the compass is also balanced. So I am just first of all I am writing here question number 3. Okay, first of all I am just measure the distance of 3 centimeter in my compass through scale. मेरे पास स्केल नहीं है, सेट स्क्वायर है. आप लोग भी ऐसे करते हो तो मैं भी ऐसे कर रहा हूँ. 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लेता हूँ. ये ले लिया मैंने. ऐसा रख के नापते हैं, ऐसा रख के खींच देते हैं. 4 का होता है यहाँ पे, 5 का, इस तरह से ले लेते हैं. फिलहाल 3 सेंटीमीटर. तो आई एम जस्ट टेकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर, 3 यूनिट्स, 3 सेंटीमीटर इन माई कंपास. राइट. I hope you understand my words. So first of all I am just making an angle of 3 centimeter in middle of my notebook. So guys, I am just suggest you this compass. This compass is very good. It is थोड़ा costly but it is very good for construction purpose, right? And in this हमें एक स्केल भी यहाँ पे मिल जाता है. मैं इसका ऐड नहीं कर रहा हूँ लेकिन ये अच्छा है काफ़ी. तो आप ये वाला कंपास यूज़ करें. ओके, तो 3 सेंटीमीटर का मैंने ये बनाया. क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे. टेक 2 points P and Q on one of its extended diameter. ओके, एक्सटेंडेड डायमीटर. पहले हम समझते हैं डायमीटर क्या है, फिर समझेंगे एक्सटेंडेड डायमीटर क्या है. क्लियर? दिस इज डायमीटर, राइट? व्हाट इज एक्सटेंडेड डायमीटर? इफ आई एक्सटेंड this diameter further, then it is called extended diameter. I am just extended it from both the ends, because according to question, let me understand the question by reading once again. Take 2 points P and Q on one of its extended diameter, each at a distance of 7 centimeter from its center. दो पॉइंट लेने हैं P और Q. दोनों के दोनों एक्सटेंडेड डायमीटर पे होने चाहिए. और ईच हर कोई कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए सेंटर से? 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर. ओके, सो वेयर इज माई सेंटर? This is my center, and it is quite wrong because the diameter is not lie in it. Okay, so first of all I make it again by the compass. Okay, now the diameter is this and extended diameter is this. Okay, at a distance of 7 centimeter from the center. This is center, 7 centimeter. Here it is. This is center. Here it is. These 2 points. In the question, it is written that name the points P and Q, which are at a distance of 7 centimeter from its center. The distance, this is 7 centimeter and this distance is also 7 centimeter. So I am just giving a name to its center O. Right. Now read the question further. Draw tangents to the circle from these 2 points P and Q. Very simple. मुझे इन दोनों पॉइंट से P से और Q से टेंजेंट्स बनाने हैं सर्कल के ऊपर. समझ में आ रहा है?
तो देखते हैं कैसे बनेगा टेंजेंट। टेंजेंट बनेगा सिंपल तरीका जो पिछले वाले 2 क्वेश्चन में हमने यूज़ किया था, सिंपल वही है। तो पहले मैं पॉइंट क्यू ले लेता हूँ। क्यू से मुझे टेंजेंट बनाना है इस सर्कल पे। तो टेंजेंट बनाने के लिए मुझे चाहिए पॉइंट। कहाँ पे मिलेंगे वो पॉइंट? यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। कहाँ है वो पॉइंट ये नहीं पता। एक और चीज़, हमने 10th चैप्टर में जाना है लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो मैं ऐसे ही कहीं पे भी पॉइंट नहीं ले सकता। अगर मैं यहाँ पे कहीं पॉइंट ले लूँ और अंदर से चला जाए निकल गया तो वो सेकंड बन जाएगा, टेंजेंट नहीं बनेगा। तो मुझे क्या काम करना है, मुझे यहाँ पे कहीं से पॉइंट चाहिए, किसी तरह से कहीं से मुझे पॉइंट मिल जाए यहाँ भी और यहाँ भी, और वो पॉइंट ऐसे हों जिससे टेंजेंट इक्वल बने। तो उसके लिए मुझे काम करना है। तो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट गोइंग टू मेक अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ क्यू ओ। मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालूंगा, उससे एक सर्कल बनाऊंगा। वो सर्कल इस सर्कल पे जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वो होंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो देखते हैं, दिस दिस एंड दिस कैसे बनाया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? मोर देन हाफ डिस्टेंस लिया, एक यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, और जिसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है उसके दोनों कोनों से सेम काम करना है। मुझे ओ क्यू का बनाना है तो मैंने ओ से लिया, एक यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया। क्यू से लिया, एक यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया। ओ से लिया, एक यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया। तो ये क्या हुआ? ये हुआ मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मुझे क्यों चाहिए था? क्योंकि मुझे ये पॉइंट चाहिए था। ये पॉइंट क्यों चाहिए था? जिससे मैं सर्कल बना सकूं। अब देखिए एक सर्कल बन रहा है क्या, एक इससे लेके ओ तक। ये मुझे रेडियस मिल गया। मैं चेक करता हूँ सही है या नहीं। ये वाला पॉइंट जो ओ पे आ रहा है ना, क्यू पे आना चाहिए ऑटोमेटिक। ये देखिए खुद ब खुद क्यू पे आ गया, आया ना क्यू पे। इसका मतलब मेरा ये क्वेश्चन ठीक चल रहा है बिल्कुल। अब मुझे सर्कल का सेंटर बनाना है, सॉरी सर्कल बनाना है। ये सर्कल में रफ है। मैंने क्या बताया था आपको? रफ वर्क जो होगा, हेल्पिंग वर्क जो होगा, नॉट रफ, हेल्पिंग वर्क जो होगा वो कैसे होगा? वो डॉटेड होगा, वो डार्क नहीं होगा। डार्क क्या होगा? डार्क होगा जो क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? सर्कल बनाने को दे रखा, तो मैंने डार्क बनाया, और टेंजेंट बनाने को दिया, वो मैं डार्क बनाऊंगा। तो ये बन गया मेरा। तो मुझे 2 पॉइंट मिल गए। ये एक पॉइंट मुझे ये मिल गया और एक पॉइंट मुझे ये मिल गया, राइट। बस हो गया मेरा क्वेश्चन। ओ से मैं इस पॉइंट को ज्वाइन कर दूंगा, ये कर दिया ज्वाइन, और नॉट ओ से क्यू से, और इसको भी ज्वाइन कर दूंगा। ये दोनों पॉइंट कौन से हो गए? T1 और T2। अब इसे मेज़र करके देखो, इक्वल ही आएगा बिल्कुल। कर लेते हैं, देखो मेज़र। ये रखा मैंने यहाँ, ये कितना आया? 6.4 समथिंग। ये रखा मैंने यहाँ, ये देख लीजिए 6.4 समथिंग। दोनों ही इक्वल आने हैं बिल्कुल, राइट। जो काम मैंने पहले मैं क्या काम किया? ओ क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला। ऐसे ही मैं ओ पी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालूंगा, ठीक। तो ध्यान से देखिए, ये मैंने जूम कर दिया आपको समझाने के लिए। ओ पी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे सर्कल बनाना है ओ पी को के बीच में सेंटर लेके। तो मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए। कैसे करा? ओ पी का चाहिए तो ओ पी का मोर देन हाफ डिस्टेंस लिया, एक आर्क इधर लगाया, एक आर्क इधर लगाया। दोनों कोनों से लगाते हैं, तो एक बार पी से लगाया, एक बार ओ से लगाया। ये बन गया मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मुझे मिलेगा पॉइंट, जो पॉइंट आएगा बिल्कुल बीच में इसके। ये देखिएगा, एक्चुअली ये लाइन भी ना डॉटेड होगी, बिकॉज दिस इज ऑल्सो हेल्पिंग वर्क। तो ये बीच बीच से मैंने इसे रब कर दिया। क्लियर? चेक करता हूँ कि बीच का पॉइंट मिला भी है नहीं। इसका एक डिस्टेंस पी पे आएगा, एक पी पे आएगा घुमा के, एक ऑटोमेटिक क्यू पे आएगा। तो ये आ गया बिल्कुल ठीक है। ये डॉट 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 लाइन लेके ये बन गया सर्कल। आ रहा है समझ? जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो एक जनरल पॉइंट बताया था, आर्क जो है ज़्यादा बड़े ना हो, है ना। तो ये रब कर देते हैं। ओके, मिल गया पॉइंट। एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा। कौन सा पॉइंट होगा? गिवन सर्कल पे जो कट करेगा हमारा डॉटेड सर्कल, वो होगा मेरे पॉइंट्स। तो एक पॉइंट ये मिला, इसे मैंने यहाँ ज्वाइन कर देता हूँ। एक पॉइंट ये मिला, इसे मैं यहाँ ज्वाइन कर देता हूँ। ये हो गया मेरा T3
T4। देखो जल्दी जल्दी में थोड़ा साइड हो गया, ध्यान से देखो, ये ऐसे होगा। आई बात समझ? तो समअप कर देते हैं अपनी बात को। कैसे बनाया मैंने? क्वेश्चन कह रहा था एक सर्कल बनाओ 3 सेंटीमीटर का, उसके एक्सटेंडेड डायमीटर पे 2 पॉइंट लो P और Q, जो कि सेंटर से 7-7 सेंटीमीटर की दूरी पे हो, और उन दोनों पॉइंट से सर्कल बना दो। तो पहले मैं एक का समझ लेता हूँ। सपोज एक ही पॉइंट है, ये Q है बस, तो मैंने ओ क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया पहले, ये पॉइंट मिला मुझे, यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ किया। जो ये सर्कल ड्रॉ किया, वो सर्कल क्यों ड्रॉ किया? जिससे वो गिवन सर्कल पे कहीं कट करे। 2 पॉइंट पे कट किया, बस ये 2 पॉइंट मुझे चाहिए थे और मैंने ये ज्वाइन कर दिए। टेंजेंट बनाने के लिए एक पॉइंट चाहिए होता है। टेंजेंट, चलो रफ पे समझा देता हूँ मैं आपको। रफ नोटबुक देखिए, टेंजेंट बनाने के लिए एक पॉइंट चाहिए होता है। सपोज ये सर्कल है, ये पॉइंट है, मुझे टेंजेंट बनाने के लिए कम से कम पॉइंट चाहिए ना। यहाँ कहाँ है पॉइंट? वो पॉइंट कहाँ होगा उसे निकालने के लिए मैं इसके सेंटर से ज्वाइन करूँगा। ये ज्वाइन किया, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला, मोर देन हाफ लेके, ये मिल गया। यहाँ से एक सर्कल बना दो, वो सर्कल जो कट करेगा वो होंगे पॉइंट मेरे, इसे मिला दूंगा, ये बन जाएगा टेंजेंट। आया समझ? तो यही सारा वर्क मैंने इस क्वेश्चन में आपको करके दिखाया। और आप लिख सकते हो यहाँ पे PO 7 सेंटीमीटर, क्योंकि O से 7 पे बोला था उसने, और OQ भी 7 सेंटीमीटर आप बोल सकते हो इसे। और सर्कल का रेडियस भी दिखा सकते हो आप, रेडियस कितना? 3 सेंटीमीटर। ये आप चीज़ें लिख सकते हो यहाँ पे। यहाँ लिखोगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा लिखा हुआ, शायद पिछले क्वेश्चन में मैंने लिखा था, नहीं लिखा पिछले में भी। इस तरह से आप कर दोगे। मेजरमेंट करने को नहीं कहा, वरना हम मेजरमेंट भी कर देते। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, राइट? तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हम लिख रहे हैं, देख लेते हैं। तो बच्चों स्टेप्स में हमें बड़ा सिंपल रखना है, हमें बड़ा सिंपल रखना होता है, क्योंकि स्टेप्स की इतनी कोई वैल्यू नहीं होती, बस लिखे हुआ होना चाहिए। तो देख लेते हैं हमें लिखना क्या है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है, जो किया उसे लिख दो। पहला स्टेप क्या था? ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर विथ सेंटर O। ठीक, उसके बाद ज्वाइन O to P and Q such that OP इक्वल टू OQ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये तो क्या था? उसके बाद हमने दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP एंड OQ बो। कितना सिंपल। उसके बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद हमने क्या काम किया था? पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, हमें पॉइंट मिले थे। एक का पॉइंट दे दो M, एक का नाम दे दो N। ठीक, with N as center draw a circle that intersects the smaller circle at T1 N से कहाँ पे? T1 T2 पे। स्मॉलर सर्कल T1 एंड T2। स्टेप 5, सिमिलरली with M as center draw circle that intersect smaller circle at T3 and T4. Next, join O2, not O2, P to T3
and T4 and Q2 P2 T3 T4 and Q2 T1 T2 T1 and T2. 7. In this question he is saying that draw tangents to a circle from these 2 points PT1 PT3 PT4 QT1 QT2 are required tangents. ये अलग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी लिख दीजिए, जो मेरे समझ में आया मैंने वो लिख दिया। कल को मैं दोबारा क्वेश्चन कराऊंगा, उस टाइम पे मेरे दिमाग में जो आएगा मैं वो लिख दूंगा। कुछ भी कर सकते हो आप, कुछ भी लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या लिखना है, कैसे लिखना है, जो भी समझ में आए, जो किया लिख दो। इंग्लिश का कोई इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है यहाँ पे। आई होप यू अंडरस्टैंड माई क्वेश्चन, understand the question, you understand my words. In next video we will discuss the next question. Okay, so do it in your construction notebook. Thank you and have a nice day.